My topic of today's lecture is utility of Vishar yogas in non-poisonous conditions. So I will start my this thing, but I want to tell you that this topic is very much important in our day-to-day practice. So I'm starting my lecture. Utility of Vishar yogas in non-poisonous conditions. There are hundreds of traditional formulations in the market, which are mostly prescribed by physicians based on their knowledge about the general context of reference and not after analysis and understanding about the similarity in the pathogenesis about the diverse medical conditions mentioned in the respective falashrutis. Analysis of ingredients and the falashruti of each of these formulations gives a clear picture about them and helps to make a better application in our clinical conditions. My lecture is aims to analyze Vishar Dravyas and yogas which play a significant role in the management of general diseases. In the management of Kushta, Unmada and Vandhyatva, Vishar yogas have a unique role to play like Bilwadi Gutika, Kalyana Grita, Tikta Grita, Dhanvantar Grita, Patol Katu Rohinyadi Kashai, Arak Vadadi Kashai, and Sanjeevani Vati can be cited as examples. These formulations with Visharatva property as one of the actions have a better effect in general diseases than other formulations. There is a need to list out few key aspects in the management of Visha and the characteristics of the conditions mentioned in the Palashrutis of these formulations. In the management of Visha, the primary focus is to eliminate Visha before it has an opportunity to damage Dhatus and Ojas. In the case of Sthavar Visha, we have an opportunity to eliminate it by Vaman or Virechan. These are the Panchkarma, Vaman and Virechan. You all know all these procedures. As Jangam Visha is directly introduced into the Rakt, it spreads quickly and damages the Dhatu much faster. Here we need to rush to ensure quick pack of Vish before this happens, and for that Ushna Tikshna Dravyas are required to be administered, though they are similar to Visha in properties. In the detoxification of Visha and the containment of Vish, Ushna Pradhan Agad has a significant role. Marich, Shigru, and Arka are examples. At this juncture, we should remember the other side of the truth. As the gunas of Pitta and Vata overlap significantly, the Pak of Vish in Pitta Pradhan Vish is enabled only with the Shit and Tikta Pradhan like Hriber and Sariva and Chandana. Thus, it is a natural finding that some Pittahar Aushadas have also having Vishar property. Patol Katu Rohinyadi and Guduchyadi Kashaya fortify the above opinion. In the Falashruti of the above mentioned formulations, clinical conditions characterized by Ras Dhatu is a common factor. So, Pachan Aushadas become a necessity in such conditions. Vish is apaki, that you all know. Vish is apaki. Many diseases are characterized by a component of something that refuses to undergo pak or digestion. This apaki component of Visha give such a disease a resemblance of Vishajanya Vyadhi. Normally, a disease is managed with drugs that possesses qualities opposite to those that cause the disease. In disease conditions with higher Visha component, we employ another Vish instead of employing the Viprit Guna. This exception becomes inevitable because the Vyavai and Vikasi Guna of Vyadikar Vishadravya can be matched only by another Vishadravya. The notable point here is that the Vish Dravya employed as a drug, even if Ushna Gun, doesn't aggravate the potency of Vishadravya that caused the disease. Even in the formulation of Vishar yogas, Tikshna and Ushna Gunas are dominant. With this understanding of dynamics of Vish and Vish Chikitsa, we can try to analyze the application of this understanding in the management of diseases not caused by the Visha. Some of the drugs which are mentioned in our Sanhita Granthas, I am explaining all these afterwards. These are I am telling the list of all the drugs. First one is Vilvadi Gutika, that is mentioned in Ashtang Hriday Uttar Tantra 36 chapter 84 to 86 number shlok. Then Sanjeevani Vati, it is mentioned in Sharangdhar Samhita. Then Kalyana Grita, Ashtang Hridayam Chikitsa Sthan 6th chapter 26 by 31, 26 to 31 number shlok. Tikta Ghritam, Ashtang Hriday Chikitsa 19th chapter 2 to 7 number shlok. Dhanvantari Ghrit, that is mentioned in Ashtang Hridayam 8th chapter. Mahatikta Ghritam,
that is mentioned in Ashtanga Hridayam Chikitsa Sthan, 6th chapter, 26 to 31 number shlok. Arak Vadadi Ghana, that is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan. Patol Katu Rohinyadi Ghan, that is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan. And afterwards, Lodradi Ghan, it is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan, 15th chapter. Arkadi Ghan, it is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan, 15th chapter. Eladi Ghan, that is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan, 15th chapter. Shyamadi Ghan, that is mentioned in Ashtanga Hridayam Sutra Sthan, 15th chapter. Narayan Chund, it is mentioned in our Samhita Granthas. Then Sharagad, it is also mentioned in our Granthas. Dashmul Haritki, it is also mentioned in our Granthas. Now I am explaining all some of the medicines which I have mentioned earlier. I am explaining about them one by one. Bilwadi Gutika, most ingredients of Bilwadi Gutika have Ushna and Tikshna Guna and Pachan Karma. The Falashruti includes almost all Jangam Visha, Jwar, Garvish, Ajirn, Visuchika and mental aberrations. One safe interpretation is that this yoga corrects apakwa in rasa dhatu and regulates vata. Clinically, it has an extended efficacy in conditions like atisar, chhardi and jwar, where arm is predominant. In psychiatric illnesses as well as somatic illnesses that affects the mind, with an appropriate anupan, this gutika stabilizes the mind. Second one is Kalyanak Ghritam. In the Kalyanak Ghritam described in Ashtanga Hridayam, wish is an indication. Its specific utility is to produce Hridayavaran in Jangam Visha. Now most physicians use this in Manovyadhi Chikitsa, Manas Roga, they are using it. Its variants, namely Mahakalyana Ghrita and Shir Kalyana Ghrita, are used in infertility characterized by aretus and alparajas. The other conditions, namely Pandu Rog, Kushta Rog, Prameh Rog, and Jwar, have apakvavastha in rasa dhatu as a common ingredient. This allows us an opportunity to make another safe interpretation that these two yogas have a pachan karma in the rasa dhatu in the above mentioned conditions. One such clinical benefit of an hold interpretation and an appropriate application of a drug is seen in the efficacy of Mahakalyana Ghrita in Shwitra occurring in the aged population. In comparison to Bilwadi Gutika, Dravyas are less in Kalyana Ghrita. These two yogas execute their Pachan Karma more due to Vayu and Akash in the Tikta Ras Dravyas and less due to Tejo Bhuta in Katu Ras Dravyas. Devapahat Chetas is an indication in Kalyana Ghritam. If Kalyana Ghrita is in improving the luster of the patient, then we have to agree that Kalyana Ghritam is Deepan and Pachan. Third one is Aragvad Kashayam. Aragvadadi Kashayam is generally employed in Kapha Pitta Janya Vikaras. We all know that its efficacy to reduce the Dushta Medas. Its antitoxic property is one reason why it is particularly effective in Dushtavran and Kafach Prameh. Fourth one is Dhanvantar Ghritam. Even though this drug is mentioned in Prameh Adhikar, the indications also include Vish, Garvish, Kusht, etc. The majority of ingredients have Ushna and Tikshna property, which makes it useful in Pachan Karma in the above mentioned diseases. Fifth one is Sanjeevani Vati. The indication of this drug is mentioned according to its dose. It is Sanjeevani Vati is indicated in minimum dose for Ajirn, which an increased dosage for Sannyas and Vish. This means the action of this drug is according to Pachan Karma. Now, next one is Patol Katu Rohinyadi Kashayam. This is mainly indicated in Kapha Pitta Pradhan diseases. It can be used in Luta Vish, Pitta Pradhan Vishas and Visarpa. It is used in these conditions because of its Rechan property. Now, conclusion of my lecture. In the case of any yoga, it goes without saying that the clinical conditions indicated in the Falashruti will have at least one common component of Samprapti that threads through them. Apakvavastha is a key factor in all Vishajanya Vikaras. Similarly, the clinical success of the above mentioned yogas in Jwar Rog, Pandu Rog, Ajirna and Visuchika points towards the common factor, namely Apakvavastha in Rasadhatu. In the case of Kushta Rog, Unmad and Vandhyatva, the above drugs can be employed when there is an Apakvavastha in Rasadhatu. Vishhar Aushadhas, though having the above mentioned advantage, should not, need not, and cannot be used for management of common diseases. Only when the Nidan, Samprapti and Lakshana is indicated of Visha and Vish Saman component should we suggest the
superior clinical contribution a Vishhara Aushadas is likely to make. In any common diseases, we may identify a component or stage of Samprapti to be Vishasaman. That would be right time to employ Vishhar Aushadas. Now I'm explaining my all the lecture in Hindi also, because most of the people in Ayush Darpan platform are understanding Hindi language. अभी प्रणाम सभी लोगों को। मैं हिंदी में जो भी मैंने बताया वो मैं सभी हिंदी में बताता हूँ। अब क्या है कि विषहर योग जो अपने अगत द्रव्य हैं वह बहुत सारे नॉन पॉइजनस कंडीशन में भी यूज किया जाता है, जब विष का साक्षात रूप में सेवन नहीं किया जाता है। तो कंडीशन क्या क्या रहती है वह सब मैं आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए आया हूँ। अगर हम लोग अपने ग्रंथ देखेंगे, चरक सुश्रुत वाग्भट शारंगधर संहिता भाव प्रकाश निघंटु, सभी ग्रंथ जब देखते हैं बृहत्रय लघुत्रय मध्यमत्रय, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अपने आर्ष ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन बताए हैं, योग बताए हैं, और वह सब मार्केट में भी मिलते हैं। जो बहुत सारे फिजिशियन चिकित्सक लोग जो हैं वह अपने दिमाग से युक्ति पूर्वक उसका प्रयोग करते हैं या आप्त वचनों को प्रयोग करके और ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर संप्राप्ति भंग हो जाता है। और यह जो युक्ति देते हैं, युक्ति से प्रयोग करते हैं, तो जो अंशांश कल्पना से यूज होता है, या कभी दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ दो दो मेडिसिन को मिक्स करके देते हैं और उससे फायदा होता है। अगर हम जो भी हमारे जो मेडिसिन योग बताए हैं, अगर हम उनका फल श्रुति देखेंगे कि उनका गुण और उपयोग कौन कौन सी व्याधियों में है, तो उससे हमें पता चलेगा कि यह किस तरह की संप्राप्ति में, मतलब कौन कौन सी संप्राप्ति को भंग करने के लिए यह योग ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत अच्छा फायदा करता है। जब हम लोग उसका द्रव्य गुण से हम अभ्यास करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें हर जो योग है उसके फल श्रुति से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये दवाई इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और फिर वह क्लिनिकली, केवल हम ग्रंथ पढ़ लिए, हम संहिता वाचन कर लिए, ये नहीं है। जब हमारे पास पेशेंट प्रैक्टिस में आते हैं तो हम क्लिनिक में बैठ के और फिर वो अपने पेशेंट में देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा उसका उपयोग करने को आ जाता है। अभी मैं जो बताने के लिए आया हूं उसमें हमें यह देखना है कि जो अगत द्रव्य हैं, जितने भी विषार द्रव्य हैं और जो योग हैं, उनका क्या रोल रहता है नॉर्मल डिजीजेस में, कैसे योग रहता है और क्यों रहता है, मतलब वो क्यों काम करने के लिए हम लोग उसका युक्ति लगाते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कुष्ठ व्याधि है, कुष्ठ व्याधि भी अगर विष का सेवन करने से हो गया है, जैसे गर विष का प्रयोग हो गया है, संयोगज विष का प्रयोग हो गया है, या अलग अलग तरह से विष गया है, जैसे कि विरुद्ध अन्न का सेवन कर लिया, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, दूध और नमक, ये जब विरुद्ध अन्न जा रहा है हमारे शरीर में, तो वह जरूर श्वित्र करेगा या कुष्ठ करेगा। या फिर अध्यशन किया जा रहा है, मतलब वीर विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, सातवें विरुद्ध, ऐसे अलग अलग देश विरुद्ध, हर तरह के विरुद्ध अन्न का जब सेवन किया जा रहा है या फिर अग्नि विरुद्ध सेवन हो रहा है, तो वह जरूर त्वचा रक्त मांस लसिका को दुष्ट करेगा और कुष्ठ व्याधि होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो आम विष तैयार हो रहा है या फिर जो विकृत जो रस बन रहा है, आहार रस जो विष जैसा बन रहा है, उसमें हम लोग विषहर द्रव्य या अगत द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलता है। इसको आगे मैं और बताता हूं। इसी तरह से उन्माद की अवस्था होता है, तो उसमें उन्माद में भी जो बाह्य आगंतुज उन्माद होता है उसका कारण भी विष होता है। कभी कभी क्या होता है कि निज दोषों के विकृति की वजह से भी उन्माद हो जाता है, और ग्रह की वजह से, जैसे पितृ ग्रह, गंधर्व ग्रह, वो जब आक्रांतित होते हैं तो उसमें क्या होता है, मन जो रहता है, मन में जो संज्ञा व स्त्रोतस रहते हैं वो अवरुद्ध हुआ रहता है रज और तम की वजह से, और बहुत ज्यादा शोक में पेशेंट रहता है, अवर सत्व का रहता है, संज्ञा व स्त्रोतस पूरा दुष्ट हुआ रहता है, वहां पर भी विष का संयोग जरूर होता है। निज दोषों से उत्पन्न अग्निमंदता की वजह से मन कमजोर है, तो मन ही अपने शरीर में बहुत ज्यादा विष बना लेता है। तो उन्माद में भी यह विषहर द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, विष को ध्यान में रखते हुए। हम वो नॉर्मली हमें दिखता नहीं है कि वो उन्माद हुए तो विष की वजह से, लेकिन उसमें हमें उसका भी प्रयोग करके देखने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बंध्यत्व के केस रहते हैं, जहां पर बांझपना रहता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी है, तो वहां अगर हम लोग हेतु निकालते हैं तो बहुत बार ऐसे पता चलता है। हमारे आदरणीय गुरुजी जमदग्नि सर ने बहुत बार ऐसे केसेस निकाले हैं कि किसी किसी को ना बंध्यत्व है, तो वो ना जैसे करवीर का पेड़ बहुत ज्यादा लगा है और वह जो हवा आ रही है करवीर की वजह से आ रही है, या ये जो पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं अर्क का जो ऐसे फल रहता है ना, जो वहां से निकलता है, जो रुई बोलते हैं मराठी में, या कनेर बोलते हैं,
तो वहां से जो पोलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं वह किसी ना किसी तरह से शरीर में जा रहे हैं और वो वंध्यत्व का हेतु बना। इसी तरह से बहुत सारे वंध्यत्व के हेतु बन रहे हैं जो हमें पता नहीं है। साग सब्जियों में, बहुत सारे धान्यों में जो विष जा रहा है और उसका परिणाम ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब में उसका इफेक्ट आ जाता है, ओवरीज में आ जाता है, जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर नहीं हो पा रहे हैं किसी ना किसी। और हमारे सर बताते हैं ये बात कि जब कोई भी चिकित्सा करके पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो अगत द्रव्यों का प्रयोग करके उसका हम लोग जब निराकरण करते हैं 100% रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही मैं बताने के लिए आया हूँ। मैं जो भी चीज सीखा हूँ, जो मैं करता हूँ प्रैक्टिस, वो मेरे सभी आदरणीय जमदग्नि सर का ही आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझे सारा आयुर्वेद सिखाया है। और लोगों ने मुझे सिखाया होगा लेकिन मुझे उतना उतना ज्ञान नहीं मिला जितना जमदग्नि सर ने सिखाया। मतलब अगर 100% में 100% जमदग्नि सर ने ही मुझे आयुर्वेद सही मायने में सिखाया है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आगे बताता हूँ कि विषहर योग जो है कुष्ठ रोग में भी बहुत ज्यादा होता है, उपयोगी होता है, उन्माद में भी होता है, वंध्यत्व में भी होता है। ऐसे ही कुछ कुछ द्रव्य जो हैं जो हम लोग विष का चिकित्सा करने के लिए अगत द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और वो जनरल डिजीजेज में भी करते हैं, लेकिन वहां विष का हेतु जरूर रहता है। जैसे बिल्वादी गुटिका है, कल्याणक घृत है, तिक्तक घृत है, धन्वंतर घृत है, इनका जरूर रोल रहता है कि वह विषजन्य संप्राप्ति को ठीक कर देता है। पट्टोल कटुरोहिण्यादि कषाय है, उसका भी बहुत अच्छा महत्व रहता है। आरक बदादि कषाय है, संजीवनी बटी है, ये सारे उदाहरण हैं जो हम लोग के चिकित्सा में हम लोग जब देते हैं, जब सारी चिकित्सा फेल हो जाती है और जब हम लोग ये अगत द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो हमको 100% रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो हमें यह भी एक विचार करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी संप्राप्ति को भंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह से ये जितने भी द्रव्य हैं, योग हैं, जो मैंने बताया कि तिक्तक घृत है, कल्याणक घृत है, बिल्वादी गुटिका है, धन्वंतर घृत है, आरकवत कषाय है, और फिर ये सब क्या है, संजीवनी गुटी है, ये सब क्या होता है कि इनका विषहरत्व गुण रहता ही रहता है। और यह जो नॉर्मल जो व्याधियां होती हैं उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे उन्माद में, अपस्मार में कल्याणक घृत का तो काम होता ही है, कुष्ठ में तिक्तक घृत का होता ही है, नॉर्मल डिजीजेस की में भी होता है, संप्राप्ति भंग करने में होता है। लेकिन विष के तरफ से अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो और अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें ना आज के जमाने में ये जो अगर हम लोग बड़े बड़े डिजीजेस ठीक करें, जैसे कैंसर हो गया, अलग अलग तरह के कैंसर हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्याधियां हो रही है, कोरोना वायरस हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, जीका वायरस आ रहा है, ये सब भी विषजन्य ही है। तो इसमें हम लोग कैसे विचार करें, क्या विचार करें, वह हम लोग आगे अगर ये सब पे अभ्यास करके रिसर्च करेंगे तो और हमें ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज करने के लिए आएगा। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ और भी बताने के लिए आया हूँ कि जब हम लोग ये योग देखते हैं सारे, कि कल्याणक घृत का जब फलश्रुति बताया है कि उनका क्या क्या व्याधियों में क्या क्या उपयोग होता है, तिक्तक घृत का बताया है, फिर बिल्वादी गुटिका का बताया, धन्वंतर घृत का बताया, श्लोक में सब बताया रहता है कि ये कौन कौन सी अवस्था में कब कब अंशांश कल्पना से क्या क्या अवस्था में देना चाहिए, तब हमें और भी पता चलता है। इसीलिए ना फलश्रुति को पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे सर बताते हैं कि आपके पास जैसे ज्वर के पेशेंट आए, अतिसार क्या है, पांडु क्या है, तो आप ना वो सब व्याधियों के योग निकालिए और उनमें से जो जो कॉमन दवाइयां हैं उसको आप पेपर पे लिख लीजिए और वह चिकित्सा के लिए दीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से सर ने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए बताया है कि सारे द्रव्य जो जो जैसे उन्माद में आए हैं, अपस्मार में आए, उन सबको आप स्टडी करिए। तो अपस्मार प्लस पांडु है, अपस्मार प्लस प्रमेय है, अपस्मार प्लस ज्वर है, कौन कौन सी फलश्रुति आ रही है, मैच हो रही है, उसमें वो द्रव सेलेक्ट करके दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट। इसी तरह से हमें और पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को और पढ़ना चाहिए, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। तो अब क्या है कि जब हम विष की चिकित्सा करते हैं तो विष की जब चिकित्सा करते हैं तो हमारा ध्यान क्या रहता है कि हमें ना हमें विष निकालना है। और यह जो विष का सेवन हो रहा है, अब जरूरी नहीं कि सबको सांप काटे तभी हम चिकित्सा विष का करेंगे, ऐसा नहीं है। स्थावर विष भी हो सकता है, जंगम विष भी हो सकता है, कोई मतलब कीड़ा भी काट सकता है, कोई बिच्छू भी काट सकता है। जो भी विष जा रहा है वह क्या करता है कि धातुओं का नाश करता है, ओज का नाश करता है। तो हमें विष को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो विष जो रहता है वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज करेगा, ओज को क्षय करेगा, धातुओं को डैमेज करेगा और कोई ना कोई व्याधि होकर मृत्यु तक हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं तो स्थावर विष के बारे में जब हम देखते हैं तो स्थावर विष जब सेवन होता है, जैसे वनस्पति किसी ने खा लिया, किसी ने कनेर खा लिया, किसी ने कुछ भी स्थावर विष खा लिया, मतलब पेड़ पौधे वाला जो विष है उसका सेवन हो गया, तो हम लोग उसको वमन और विरेचन करा के हम लोग निकाल देते हैं। ये आप लोग को पता है।
वमन तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है कि उल्टी कराते हैं, शाखा से कोष्ठ में दोष लाके और उल्टी कराते हैं, सारा दोष निकल जाता है। यह तो सद्य वमन भी करते हैं, नमक पानी पिला के, और वो पानी पिला के उंगली डाल के उल्टी करा देते हैं, सारा निकल जाता है। छोटे बच्चे कभी कभी कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, वह भी हम लोग स्थावर विष को वमन से निकाल देते हैं। अगर वैसे नहीं निकल रहा है तो लूज मोशन का कुछ गोली देते हैं, एरंड तेल देते हैं और विरेचन द्वारा निकाल देते हैं। जब जंगम विष की बात आती है तो जंगम विष किसी कीड़े ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, लूता ने काट दिया, या फिर बहुत सारे सांप ने काट दिया, तो वह जो विष है वो तुरंत ही रक्त में मिल जाता है और वो पूरी तरह से तुरंत फैलता है। विषैले जो प्राणी है, जो यहाँ पर जंगम विष मतलब प्राणियों का विष, जब वह किसी ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, सांप ने काट दिया, छिपकली ने काट दिया, जो भी विषारी लूता ने काट दिया, मकड़ी ने काट दिया, तो वह क्या करता है कि धातुओं को जल्दी जल्दी तुरंत ही डैमेज करता है। कुछ कुछ जो सांप रहते हैं वह न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं, जो नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं उनका विष। कुछ कुछ होते हैं कार्डियोटॉक्सिक रहते हैं, मतलब हार्ट को तकलीफ देके मृत्यु को लाते हैं। तो हमें तुरंत ही चिकित्सा करनी पड़ती है, तो हमें ना ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मेडिसिन है उसका तुरंत फायदा हो, नहीं तो क्या होगा कि वो विष फैल जाएगा और बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। तो इसीलिए ना हमें विष का जो तुरंत ही पाक हो जाता है और वो धातुओं में बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन देना पड़ता है जो अगत द्रव्य रहते हैं, जो विष का विषहर रहते हैं, विष का नाश करते हैं। विष के जितने भी तकलीफ है वह सबको, मतलब उष्णता, तीक्ष्णता, वैवाही विकासी, ये जो प्रभाव है उसको रोक देते हैं। तो इसीलिए, और विष क्यों फैलता है, क्योंकि वह विष उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, और उसमें ना ऐसा प्रॉपर्टी रहता है, उसमें गुण ही रहता है। तो हम डिटॉक्सिफिकेशन जब करते हैं, मतलब विष को हम पूरी तरह से नष्ट करते हैं, सारा विषैलापना दूर करते हैं, तब हमें उष्ण प्रधान अगत का भी कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी वात को शमन करने वाले द्रव्यों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो उष्ण अगत जो है, तो अभी उष्ण तीक्ष्ण जो है विष, वह होने के बाद भी हमें ऐसे अगत देना पड़ता है जो वह विष को नष्ट करते हैं। तो उष्ण उष्ण, विष भी उष्ण है, विष भी तीक्ष्ण है, और हम लोग जब चिकित्सा दे रहे हैं तो वह भी उष्ण है, तब भी उनका वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यह हम लोग चिकित्सा से देखते हैं। जैसे मरीच हो गया, मरीच दिया जाता है विष उष्ण प्रधान अगध के रूप में, हम लोग जब देते हैं तो मरीच का बहुत अच्छा फायदा होता है। काली मिर्च, गोल मिर्च जो बोलते हैं, शिगरू होता है वह भी उष्ण रहता है, अर्क रहता है वह भी उष्ण रहता है, उपविष्ट रहता है अर्क। तो यह ना जंगम विष, अगर जंगम विष का मतलब किसी प्राणी ने काटा है तो हम लोग स्थावर विष देते हैं। जब ये स्थावर विष रहता है तो जंगम विष उसका प्रयोग कराते हैं। तो जैसे जंगम विष है, कोई जहरीले सांप ने काटा और वह उष्णता तीक्ष्णता बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो हमें स्थावर विष देना पड़ता है, पेड़ पौधे का देना पड़ता है। वो भले उष्ण तीक्ष्ण है लेकिन उसमें वह काटने को शक्ति रहती है, कांटे से कांटा निकालना, जिसको हम हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा बोलते हैं। आप लोगों ने उपशम अनुशम में पढ़ा हुआ है, माधव निदान में। तो अगर मतलब उष्ण तीक्ष्ण विष गया है तो हम लोग उष्ण तीक्ष्ण ही देते हैं, लेकिन स्थावर विष देते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यह समझना चाहिए कि पित्त और विष एक दूसरे के समान ही रहते हैं। मतलब पित्त दोष बढ़ जाता है अगर विष का सेवन होता है, सांप ने काट दिया या कुछ भी, तो पित्त और विष ये दोनों एक जैसे ही रहते हैं। और विष के जितने भी लक्षण होते हैं, जब वो पक्वावस्था में, पाक जब होता है विष का शरीर में जाने के बाद, तो पित्त प्रधान विष जो रहते हैं उनका हम चिकित्सा करते हैं। तो शीत और तिक्त प्रधान द्रव्य जैसे रिबेर हो गया, फिर उसके बाद में सारिवा हो गया, चंदन हो गया। जब पित्त के सारे लक्षण दिख रहे हैं तो हम लोग सारिवा, चंदन, रिबेर इन सब का प्रयोग करते हैं, तो वह पित्त के लक्षण कम हो जाते हैं। यह भी एक दृष्टिकोण है। पहले वाला जो मैंने बताया स्थावर और जंगम, वह भी एक दृष्टिकोण है। इसी तरह से हम और आगे देखते हैं तो पित्तहर औषधियां जो रहती हैं, उन जो पित्त शामक चिकित्सा रहता है वही विषहर चिकित्सा भी रहता है। जैसे कि पटोल, कटु, रोहिण्यादि कषायम, गुड़ुच्यादि कषायम, यह जो रहता है यह पित्तहर, पित्त शामक द्रव्य रहते हैं और इनमें विषहर प्रॉपर्टी रहता है। मतलब यह पित्त को भी शमन करते हैं और अगत द्रव्य में भी श्रेष्ठ बताए। पटोल, कटोल, कटोल, रोहिण्यादि कषायम, गुड़ुच्यादि कषायम, ऐसा बताया। जब हम लोग इनका फल श्रुति देखते हैं, पटोल, कटु, रोहिण्यादि कषायम, गुड़ुच्यादि कषायम का जब हम फल श्रुति देखते हैं तो उसमें ऐसा बताया है कि रस धातु जो रहता है वो कॉमन रहता है। जितने भी कंडीशन रहते हैं, ज्वर हो गया वो भी रस धातु की वजह से हो रहा है, या फिर हृदय में वो जा रहा है वह भी रस धातु की दृष्टि, रसवस त्रोदस में उनका इफेक्ट ज्यादा आता है। तो जब पाचन दवाइयां देते हैं तब वह बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। वहां पे आम पाचन करना है और जो आहार रस बन रहा है वह अच्छा होना चाहिए, इसलिए आम पाचन और अग्नि दीपन यह चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है।
अब हम और आगे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते जाते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि विष जो रहता है अपाकी रहता है, मतलब उस पर जाठरगनी की प्रक्रिया नहीं होती है। वह ऐसा रहता है कि मतलब वो पाक डायरेक्ट नहीं होता है जाठराग्नि से, वो डायरेक्ट ही अपना काम करने लगता है। उसमें पाक नहीं होता है, उसमें वो पचन क्रिया नहीं होती है, वो डायरेक्ट शरीर में जाके नुकसान देने लगता है। और अपाकी जो उसका गुण रहता है, आप लोग कभी भी अगर तंत्र में पढ़े होंगे कि विष जो होता है अपाकी रहता है, वैवाहिक विकासी, उष्ण तीक्ष्ण, ये सब रहता है। तो वह विषजन्य व्याधियों को तुरंत ही कर देता है। तो हमें जो दवाइयां देनी है वह विष के एकदम अपोजिट ऐसे द्रव्यों का सिलेक्शन करना होता है जो व्याधि कर रही हैं। अब ऐसे कंडीशन में कुछ कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं कि जो विषैले द्रव्य रहते हैं, जंगम विष हो गया, स्थावर विष हो गया, उसमें विष का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है। अभी जैसे कि मेरे को एक बार एक ना जंगल में ले जाने वाले एक मेरे पास गाइड है, मतलब एक शांतनु जोशी करके कोई मेरे पेशेंट थे। वो मुझे बोले कि डॉक्टर साहब आप चलिए, मैं आपको जंगलों में लेके जाता हूँ, मैं हमेशा जंगल में ही रहता हूँ। और वो लोहगढ़ में लेके गए, पुणे से थोड़ा दूर है, लोनावाला खंडाला के पास। वहां मुझे लेके गए तो उन्होंने कहा कि वो ना सो गए, कुछ देर सो गए और हम लोग घूम रहे थे, मैं और एक पेशेंट के साथ घूम रहा था, वो सो गए। जब हम सो के आए ना तो लोहगढ़ में वो जहाँ सोए थे वहां उनके पास आके एक सांप सोया था। सांप सोया था तो हम लोग डर गए कि सांप इनको काट ना ले। तो हमने उनको उठाया, मोबाइल बजा के उठाया, वो उठे और बोले कि फिर सांप ने अपने आप चला गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप सांप के पास सोए थे? बोले कि नहीं, एक तो इंडियन जो सांप है, इंडियन स्नेक है, वो इतने जहरीले नहीं है जितना साउथ अफ्रीका के सांप हैं या ब्राजील के जंगलों में सांप है, उसमें विष का प्रमाण बहुत ज्यादा है। दूसरा बात है कि ये जो प्राणी रहते हैं, सांप हो गया, बिच्छू हो गया वगैरह, तो इनको ना पता चलता है कि कोई इंसान उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। उनका सिक्स सेंस जो रहता है, अगर मैं यहाँ तो जंगल में ही रहता हूँ, मेरे पास कितने बार सांप और नाग, बड़े बड़े कोबरा वगैरह मेरे पे आके सो जाते हैं, लेकिन मुझे कभी काटते नहीं है और मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और यही चीज कोई और रहेगा तो वो उनको काट देंगे, लेकिन इनको नहीं काट रहे थे। तो और वो बता रहे थे कि उन्होंने फिर कुछ देर के बाद और आगे हमको जंगल में लेके गए। ये 2008 की बात है। ऐसे वो मुझे लेके गए थे कि आपको मैं जंगल दिखाता हूँ, जंगल के प्राणियों से दिखाता हूँ। कितना उन्होंने बिच्छुओं को हाथ में लिया और बिच्छू उनको काट भी नहीं रहे थे। फिर उन्होंने सांप लिया अपने हाथ में, यहाँ जंगल है लोनावाला खंडाला के पास, वहां उन्होंने सांप लिया और सांप उनको काट भी नहीं रहे। हमें देने लगे तो हमें डर लगा। तो मतलब मुझे यहाँ ये कहना है, वो सब तो स्टोरी है, मुझे यहाँ ये कहना है कि कुछ कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विष रहता है। तो हमें ना उसके विपरीत गुणात्मक जो द्रव्य रहते हैं, जो उसका विष का जो प्रभाव है उसको कम करें। जैसे वैवाहिक विकासी गुण है, वह व्याधिकर और विष द्रव्य जो रहते हैं उनको ना हम उनको काट काट दे, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करें। और एंटीडोट के रूप में ऐसे द्रव्यों का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर वह उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा है तो हमें ना ऐसे योगों का, आयुर्वेदिक योगों का प्रयोग करना पड़ता है जिसमें रहता है, विषार गुण रहता है, तीक्ष्णता और उष्णता को कम करे। इस तरह का हमें मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम जब विष चिकित्सा पढ़ते हैं, चरक संहिता का या अष्टांग हृदय का या सुश्रुत का उत्तर तंत्र है, उसमें तो पूरा विष की ही चिकित्सा बताइए। और सुश्रुताचार्य जो है वो शल्य चिकित्सक है, धन्वंतरी संप्रदाय के हैं, उन्होंने तो बहुत ज्यादा इस पे अभ्यास किया है। पूरा उत्तर तंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा उसमें पता चलेगा। और पूरा अग्र तंत्र तो सुश्रुत संहिता के बेस पे ही पूरा आयुर्वेद का भाग लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाते हैं तो हमें कुछ कुछ मिलता है जो हमें आज के जमाने में भी उसका उपयोग रहता है। अभी जैसे कि मैं कुछ द्रव्य बता रहा हूँ, जैसे बिलवादी गुट्टिका बताया है, अष्टांग हृदय शुद्ध उत्तर तंत्र में बताया है। 36वां जो चैप्टर है उसमें 84 से 86 नंबर का श्लोक है, उसमें बिलवादी गुटिका बताया है। संजीवनी गुटिका जो बताया है वो शारंगधर संहिता में बहुत अच्छा बताया है। फिर कल्याणक घृत बताया है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 6वां चैप्टर में 26 से 31 नंबर का जो श्लोक है उसमें कल्याणक घृत के बारे में बताया है। तिक्तक घृत बताया है कुष्ठ चिकित्सा में, अष्टांग हृदय चिकित्सा 19th में बताया, 2 से 7 नंबर का श्लोक में बहुत अच्छे से तिक्तक घृत के बारे में बताया। इसी तरह से धन्वंतरी कृत, मैं आगे बता रहा हूँ कि ये सारे मेडिसिन का क्या क्या रोल है। मुझे ना अष्टांग हृदय ज्यादा याद है हर चीज, क्योंकि अष्टांग हृदय का हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं। मेरे पढ़ाने में नहीं आया आयुष दर्पण पे अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, लेकिन मैं ये सारा जो अभी चरक हो वगैरह हो जाएगा ना तो मैं अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान आप लोगों को बताऊंगा उसमें, क्योंकि हम लोग को अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान से चिकित्सा करना क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिखाया गया है, मैं उस पर बताऊंगा। तो धन्वंतर घृत जो है
अष्टांग हृदय के चिकित्सासन 8वां में धन्वंतर घृत बताया है प्रमेह चिकित्सा में। महातिक्त घृत जो बताया है वो कुष्ठ चिकित्सा में अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 6वां चैप्टर है, 26/31 नंबर का श्लोक। आरग वदादि गण बताया है, ये सारे 15वां जो चैप्टर है अष्टांग हृदय के उसमें आरग वदादि गण बताया है, पटोल कटोरोहिणी आदि गण बताया है, लोध्रादि गण बताया है, अर्कादि गण बताया है, एलादि गण बताया है, श्यामादि गण बताया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग का कुछ दिन पहले ये मॉर्निंग सेशन हुआ था, 1 महीना पहले, उसमें हम सारे गण पे ही एनालिसिस करते थे सुबह 7 से 8 बजे के लेक्चर में। अभी तो स्नेह अध्याय चल रहे हैं, जिन जिन लोगों को आना है वह लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे सुबह के सेशन में आया करिए। तो आप लोगों को अष्टांग हृदय को एनालिसिस करके और क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका किस तरह से प्रयोग हो सकता है उसका जानकारी सारा मिलेगा सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। फिर नारायण चूर्ण जो है अपने ग्रंथों में बहुत अच्छा बताया, उसका भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। इसी तरह से शारागत बताया है, दशमूल हरितकी बताया है, विष चिकित्सा में ये बताया है। शारागत आप पढ़ेंगे ना चरक चिकित्सा स्थान में और अष्टांग हृदय में तो शारागत बताया है, शार रूप में अगध द्रव्य, इसको शारागत बोलते हैं। इसी तरह से दशमूल हरितकी भी बताया है, दशमूल हरितकी का अवलेह भी मिलता है। अब ये कुछ कुछ द्रव्य हैं, इसमें से मैं कुछ कुछ द्रव्यों के बारे में बताता हूँ। जैसे बिलवादी गुटिका, ये साउथ की बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, यहाँ के भी वैद्य लोग बनाते हैं बिलवादी गुटिका। तो बिलवादी गुटिका जो है वो उष्ण और तीक्ष्ण और पाचन कर्म के लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। इनका जब फलश्रुति देखते हैं तो इसमें बताया है कि बिलवादी गुटिका हर तरह के जंगम विष, मतलब सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, मकड़ी ने काटा, लूता ने काटा, कीड़े मकोड़े ने काटा, सभी में बिलवादी गुटिका अगर दे दिया तो उससे फायदा होता है। फिर ज्वर में, गर्विश में, अजीर्ण में, विसूचिका में, माइंड अगर डिस्टर्ब है उसमें बिलवादी गुटिका का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह क्या करता है कि विष का जो अपक्वावस्था रहता है तो उसको ये ठीक कर देता है। जो रस धातु अच्छे से नहीं पचा है, रस धातु अच्छा से परिणमन नहीं हो रहा है और वो परिणन कार्य नहीं कर रहा है, तो बिलवादी गुटिका के जितने भी घटक द्रव्य हैं वो रस धातु को अच्छा कर देते हैं, वायु को ठीक बैलेंस कर देते हैं। उसी तरह से इसका अगर हम लोग और देखेंगे तो बिलवादी गुटिका जो है वो बिल्व जो रहता है वो ग्राही कार्य करता है, अतिसार में काम करता है। बिलवादी गुटिका छर्दी में काम करता है, ज्वर में काम करता है, जहां पर आम दोष बहुत ज्यादा रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मानस रोगों में अगर हम लोग देखेंगे तो मानस रोगों में भी बिलवादी गुटिका काम रहता है। शारीरिक रोगों में तो काम रहता ही है, और साइकोसोमेटिक डिजीजेस जिसमें मन और शरीर दोनों इन्वॉल्व हैं उसमें भी अगर हम इसको अच्छे अनुपान के साथ दें, जैसे सारस्वतारिष्ट के साथ दें, महाकल्याण घृत के साथ दें बिलवादी गुटिका, या फिर बिलवादी गुटिका को हम लोग सारस्वत चूर्ण के काढ़ा के साथ दें, या बिलवादी गुटिका को हम लोग ब्राह्मी घृत के साथ दें, या बिलवादी गुटिका को हम लोग पंचगव्य घृत के साथ दें, महापंचगव्य घृत के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। यह मानस रोग को भी ठीक करता है और माइंड को एकदम स्टेबल कर देता है, एकदम स्थिर मन करके मन को प्रसन्न कर देता है। संज्ञा व स्त्रोत को जो दुष्टि हुई है उसको ये ठीक कर देता है। मानस रोगों में बिलवादी गुटिका का अच्छा अनुपान जो उन्माद अपस्मार में जो बताया है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मुझे फायदा हुआ है, मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है। आप लोग भी बिलवादी गुटिका का प्रयोग करके देखिए और हमें जरूर बताइएगा सेशंस में। इसी तरह से कल्याणक घृत अगर हम लोग देखते हैं तो कल्याणक घृत अष्टांग हृदय में बताया है, जहां पर विष के बारे में बताया है कि विष अगर सेवन हो गया है तब कल्याणक घृत देना चाहिए, और ये कल्याण करने वाला कल्याणक घृत होता है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कोई भी जंगम विष का मतलब सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, जंगम विष का अगर प्रभाव है और हृदयावरण हो गया है, हृदय पे उसका आघात हो रहा है विष की वजह से, तो बहुत सारे उसमें कल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं। इन्होंने बताया है, अष्टांग हृदयकार जो वाग्भट जी हैं उन्होंने बताया है कि कल्याणक घृत देना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे चिकित्सक जो हैं वो मनोव्याधि की चिकित्सा, मानस रोग की चिकित्सा में कल्याणक घृत का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से महाकल्याणक घृत भी आता है मार्केट में, शीर कल्याणक घृत, ये ग्रंथों में भी बताया है, मार्केट में भी आता है। तो इनसे इनफर्टिलिटी जो रहता है, बंध्यत्व, पुरुष का बंध्यत्व मतलब मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, उसके उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जिनको अल्प रेतस है मतलब बहुत ज्यादा शुक्र क्षय है, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, या फिर अल्प रजस है, जिनको मतलब मेंसेस ही नहीं आता, स्कैंटी मेंसेस आता है, अनार्तव रहता है, कष्टार्तव रहता है, उसमें कल्याणक घृत जो रहता है वो कल्याण करने वाला घृत रहता है। तो यह विषजन्य संप्राप्ति को भी ठीक करता है और हर तरह से ये काम करता है। महाकल्याणक घृत, शीर कल्याणक घृत, इस पर मैं कभी और अच्छे से लेक्चर लूंगा।
तो लेकिन जो शॉर्ट में बताना है कि यह विष पे भी काम करता है, अल्प अजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया में भी काम करता है, अल्प रजस है, बहुत रज प्रवृत्ति बहुत कम हो रही है, अल्प मात्रा में हो रही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, क्षीर कल्याणक घृत अगर हम लोग देखेंगे तो पांडु व्याधि में काम करता है, कुष्ठ में करता है, प्रमेह में करता है, ज्वर में काम करता है। और जब रस धातु अच्छे से नहीं परिणमन हो रहा है, आहार रस से उसका पोषण नहीं हो रहा है, अपक्वावस्था है, आमावस्था है, तब कल्याणक घृत के जितने भी कंटेंट्स है वो देखेंगे तो वह आम का पचन करते हैं और रस धातु अच्छा बनाते हैं। तो हमें पता चलता है कि इन सब का कार्य हम जब करते हैं पाचन कर्म के रूप में, और पाचन कर्म कैसा है कि रसगत आम का पाचन करना है, रस पाचक के रूप में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से और भी अगर हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं तो यह महाकल्याणक घृत जो है वो श्वित्र रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। श्वित्र रोग अगर आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, सफेद जो ल्यूकोडर्मा रहते हैं बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, उस अवस्था में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से बिलवादी गुटिका के जो द्रव्य देखेंगे वह कल्याणक घृत से थोड़ा कम है, मतलब कल्याणक घृत में थोड़ा ज्यादा है, विलवादी गुटिका में थोड़ा कम है। अगर हम ये दोनों को अगर देखेंगे तो ये पाचन कर्म करते हैं, वायु को ये ठीक करते हैं, आकाश का जो है तत्व उसको ठीक करते हैं, क्योंकि ये तिक्त रसात्मक, बिलवादी गुटिका के जितने भी द्रव्य हैं वो तिक्त रसात्मक है, कल्याणक घृत के हैं सब तिक्त रसात्मक है। तो तिक्त रस जो रहता है वो वायु और आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य रहता है, और इसके वजह से और इसमें थोड़ा तेजोभूत तेजो महाभूत वाले जो है कटु रसात्मक द्रव्य भी डाले हुए हैं कल्याणक घृत में। तो ये सारा बैलेंस करते हैं। अगर अगर हम भूताग्नि के लेवल से अगर कर रहे हैं और पांच भौतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो ये कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी एक और चीज बताया है कि कल्याणक घृत के फलश्रुति में देवोपहत इस तरह से बताया है, देवोपहत। तो उसमें कल्याणक घृत जो रहता है वह दैवोह चेतस, मतलब माइंड जो रहता है पूरी तरह से ये होता है विकृत हो जाता है, उसमें कल्याणक घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, जिसको हम लोग सिजोफ्रेनिया बोलते हैं या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लेकिन सिजोफ्रेनिया ये ज्यादा अच्छा देवापहत चेतस के बारे में अच्छा मैच होता है, तो कल्याणक घृत सिजोफ्रेनिया में बहुत अच्छा काम करता है। कल्याणक घृत जो रहता है वह वर्ण को अच्छा करता है, मतलब गोरापन लाता है, तो और दीपन पाचन कार्य भी करता है, इसलिए कल्याणक घृत का प्रयोग करना चाहिए। विष पे तो काम करेगा ही, लेकिन और भी इसके और भी नॉन पॉइजनस कंडीशंस है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर आरक वदादि कषाय, सुश्रुत में बार बार बताया कि कफज व्याधि में आरक वदादि कषाय दीजिए, आरक वदादि कफ दीजिए, या कफ पित्तजन्य में अवस्थाओं में दीजिए। तो सुश्रुत संहिता में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कफ पित्तजन्य विकार रहते हैं, कफ के विकार रहते हैं, तो मेद की दुष्टि बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें क्या रहता है, तो अगध द्रव्य भी रहते हैं इसमें आरक वदादि कषाय में। तो वह ना अगध द्रव्य होने से विष हर प्रॉपर्टी होने की वजह से विष को दूर कर देते हैं। दुष्ट व्रण में भी बताया है, कफज प्रमेह में भी बताया है, तो आरक वद्य कषाय देने से सच में फायदा होता है। इसी तरह से धान्वंतर घृत बताया है, तो इसमें प्रमेय अधिकार में धान्वंतर घृत बताया है। प्रमेय पीड़िकाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सराविका, अलर्जी, जालनी, तो उन सब में धान्वंतर घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। साथ में और देखेंगे फलश्रुति धान्वंतर घृत का, तो विष में काम करता है, गर्भ विष में, कुष्ठ में काम करता है, और इसके जितने घटक द्रव्य वो उष्ण और तीक्ष्ण रहने की वजह से पाचन कर्म करते हैं, और साथ में विष का भी नाश करते हैं। तो कोई भी कुष्ठ व्याधि हो, प्रमेय व्याधि हो, इसमें विष का भी सेवन होता है, या मेन व्याधि भी होते हैं, उसमें धान्वंतर घृत का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से संजीवनी गुटी है, संजीवनी बटी जो है वह अपने अपने अलग अलग एज से अलग अलग डोजेज में बताया है। सबसे कम मात्रा में अजीर्णावस्था में इसको हम देते हैं, तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और संजीवनी वटी जो है वह संन्यास और विष जन्य संप्राप्ति जब होती है, संन्यास में पेशेंट कोमा में जाता है, तब संजीवनी वटी का प्रयोग करने से फायदा होता है। तो और इसका जो काम रहता है वो दीपन पाचन रहता है संजीवनी वटी, विष को भी वो न्यूट्रलाइज करती है, अगध द्रव्य है संजीवनी वटी, और संन्यास में भी उसको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ला देती है, इसलिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम, ये अगर हम देखेंगे तो कफ पित्त प्रधान रोगों में इसका पटोल कटु रोहिण्यादि कषाय का प्रयोग होता है। लूता विष का अगर सेवन हो गया, लूता ने काट दिया, या पित्त प्रधान विष है, या विसर्प व्याधि है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और पटोल कटु रोहिण्यादि, कटु रोहिण्या मतलब कटकी है, पटोल है, तो यह ना विरेचन करता है, विरेचन करके सारा विष को निकाल देता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। अभी मेरा लेक्चर का कंक्लूजन ये है कि जब भी हम कोई योग देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका फलश्रुति क्या है, और फलश्रुति में जो संप्राप्ति भंग करने का रेट्रोस्पेक्टिव एक स्टडी होता है। हम लोग कोई व्याधि है उसमें ये दवाई देना है,
ये व्याधि है, इसमें ये देना है, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर हम द्रव्य देखेंगे, योग देखेंगे और उसमें कौन कौन से रोग आए हैं वह देख के फिर वो पढ़े, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब दूसरे साइड से जब हम देखते हैं तो हमें और अच्छे से संप्राप्ति समझ आता है कि ये व्याधि ऐसे से हुआ, इस तरह से संप्राप्ति भंग किया जाता है कि ज्वर हुआ, पांडु हुआ, विष का सेवन हुआ। इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो और मैं इस पर कभी एक लेक्चर लूंगा, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ संप्राप्ति भंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल द योगाज ऑफ आयुर्वेदा। इससे मैं बताऊंगा तो आप लोग को और समझेगा कि मुझे क्या बताना है। अब अपक्वावस्था जो रहता है विषजन्य विकार में, ये एक अवस्था ही रहता है, क्योंकि विष पचता नहीं है, अपाकी रहता है। हर तरह के विष रहते हैं ना, उसमें वह अपक्वावस्था रहता ही रहता है, अग्नि मान्यता रहती है और आम का उत्पत्ति ज्यादा हो ही जाता है। इसीलिए ना ये जो द्रव्य मैंने बताया, संजीवनी गुटी बताया, कल्याणघृत बताया, धानवंतर घृत बताया, ये सब का ज्वर में, पांडु में, अजीर्ण में, विसूचिका में बहुत अच्छा फायदा होता है और रस धातु को ये अच्छा करता है। और कुष्ठ व्याधि में, उन्माद में, वंध्यत्व में इन सब का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी दीपन पाचन कार्य करता है। अब और रस धातु अगर अपक्वावस्था में, उसको भी ये ठीक कर देता है। विषहर द्रव्य जो है, इनका जो फायदा है, एडवांटेज है, वो तो है ही विष की चिकित्सा में, लेकिन साथ में जो कॉमन कॉमन व्याधियां रहती है, सामान्य व्याधि जैसे ज्वर हो गया, प्रतिशय हो गया, फिर अग्निमांद्यता हो गया, कुष्ठ हो गया, प्रमेह हो गया, विसर्प हो गया, रक्तपित्त हो गया, वातरक्त हो गया, हर जो कॉमन कॉमन व्याधियां हैं उसमें भी विषहर द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, मतलब सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब इसी तरह से जब निदान, संप्राप्ति, लक्षण, ये जब हम समझ आता है विष का कि विष ने ऐसा ऐसा संप्राप्ति किया, तो हम लोग और अच्छे से ये द्रव्य देंगे तो और अच्छा हमें फायदा होता है। इसीलिए हमें ना ये योग है इनका एक बार फिर से अभ्यास करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। मैं इस विष की चिकित्सा का सीरीज लूंगा, तब मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि ये संप्राप्ति हुई है अंशांश कल्पना से, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, वायु का शीत गुण बढ़ा है, वायु का चल गुण बढ़ा है, पित्त का सर गुण बढ़ा है, पित्त का अम्ल गुण बढ़ा है, पित्त का तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण ये बढ़ा है, इस हिसाब से। और ये विष समान लक्षण आ रहे हैं संप्राप्ति में, तो हमें ये अगध द्रव्य, विषहर द्रव्यों का प्रयोग करने से हम लोग वो संप्राप्ति को भंग कर सकते हैं। तो फिर ना ज्यादा हमें और अच्छे से समझ आएगा कि हम लोग विषहर द्रव्य हैं, अगध द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो हमें कितना ज्यादा फायदा होता है, और यह सच में फायदा होता है या हमें तो जानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया कि मैं अपने तरफ से विषहर द्रव्यों को नॉन पॉइजनस कंडीशंस जो रहते हैं संप्राप्ति में, वह मैंने कोशिश किया। आप मेरे लेक्चर को अगर नहीं समझ आए फिर से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यह बहुत हार्ड टॉपिक है। मैंने अपने तरफ से बहुत मेहनत करके ये सारा, मुझे 4 घंटा लगा सारा ये अपना लेक्चर प्रिपेयर करके याद करने में, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप लोग ये इसके बारे में अपना मत भी हमें बताइएगा। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम सर। जी डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि किस जांगम विष में कौन सा स्थावर विष किस मात्रा में दें, या कैसे निर्धारित करें। तो मैं इसके एग्जाम्पल देके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर तंत्र पे मैं एक सीरीज लेने वाला हूं, तो मैं विकास जी आपको हर हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है वह मैं आपको बताऊंगा। अभी क्योंकि टाइम कम है, 15 मिनट में मैं आपका उत्तर कैसे दूं कि कौन से विष में, क्योंकि जंगम विष देखेंगे तो बहुत बड़ा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। दर्भिकर सार सर्प रहता है, राजीमान रहता है, मंडली विष रहता है। हर विष में कौन सा स्थावर विष कितना देना है, तो वह मुझे भी और अभ्यास करना पड़ेगा। मेरा ये सब्जेक्ट तो है नहीं, मेरा संहिता सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं इस पर और मेहनत करके आप लोगों के सामने इसको लेके आऊं, और हम लोग इसका सीरीज करेंगे। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। शशिकांत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। थोड़ा ये हैंग हो रहा है, ये लेक्चर के बाद जब हम स्क्रॉल करते हैं ना तो थोड़ा हैंग होने लगता है। डॉक्टर दुर्गेश मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुजाता सोलंकी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं फेसबुक से संभाषा में नहीं आ सकते, ये तो गूगल के ऑफिस में आप पूछिए, या फेसबुक का जो ऑफिस है ना वहाँ कैलिफोर्निया में है, उनसे पूछिए कि फेसबुक से संभाषा में कैसे आएंगे। ऐसे तो टेक्नोलॉजी बनाया नहीं है, जूम से ही आप आ सकते हैं। तो जूम में आने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें प्रीति जी, तभी आप आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है
फेसबुक वालों ने और गूगल वालों ने बनाई नहीं है। जूम से ही आपको आना पड़ेगा, और जूम का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैंड रेज नहीं कर सकते, बनाई नहीं है ये सब, ये चीज़ नहीं बनाया है। सुंदर पचाई से पूछिए, और ये जो है ना फेसबुक का मालिक, उससे पूछिए, उन्होंने बनाया नहीं है ये सब। डॉक्टर दीपा कुलकर्णी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निगम श्रुति निगम मैम बोल रही हैं कि बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है कल्याण गृह का। सही बात है, आपने बहुत अच्छा बताया। गौतम ध्रुव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरिंदर गुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिदीप सिंघाई जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव खुराना जी थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब जो प्रीति जी जैसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं कि हम फेसबुक से नहीं आ पाते हैं, हैंड रेज नहीं कर पाते हैं, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उनके लिए मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों का समाधान करने के लिए। जबकि आपको मालूम है तब भी ऐसे प्रश्न मत पूछिए, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। ये फेसबुक ने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया ही नहीं है, जूम से ही आप इंटरेक्टिव सेशन में आ सकते हैं। आज का ज़माना बदल गया है, लेकिन कुछ कुछ टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं हुई है कि फेसबुक से आया जा सके। इसलिए मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे संपर्क करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक दूंगा। वो फॉर्म भरिए, गूगल फॉर्म, और आप आ जाइए। इंटरेक्टिव सेशन में भी आप जूम से ज्वाइन हो सकती हैं। फेसबुक से केवल सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं असली में, आप लोग आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं हम लोगों को, वही तो हमारा मेहनत सफल होता है जब आप लोग हमारे पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, और आप लोगों का सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है अपने प्रैक्टिस में। तो ये कितना, मतलब हम ऐसा लगता है कि हाँ सच में मैंने आज 4 घंटा पढ़ा अगत तंत्र, मैंने नोट्स निकाले, मैंने याद किया। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि आप सफल हो रहे हैं। आप लोग को मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में। आप लोग का प्रैक्टिस बढ़ेगा तो मुझे इतना खुशी होता है, मुझे सच में दिल से खुशी होता है। ये देखिए मैंने पासवर्ड और आईडी दे दिया है, आप इसको ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करके जूम से आप आ जाइए, और मेरा नंबर दिया है मैंने व्हाट्सअप का, तो उससे ज्वाइन करके आप गूगल फॉर्म ले लीजिए। तो उससे फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। तो मैं अभी अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8 बजे फिर से इंटरेक्टिव सेशन होगा। देखिए इंटरेक्टिव सेशन का मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है। पासवर्ड का थोड़ा ये स्पेलिंग गलत हो गया लिखते टाइम, सॉरी, क्योंकि आपसे बात भी करना पड़ता है और मुझे टाइप भी करना पड़ता है। एक मिनट रुकिए, पासवर्ड, ये शब्द थोड़ा गलत हो गया। तो आप आज ये पासवर्ड और इंटरेक्टिव आईडी सेशन का दे दिया है। आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग अभी मिलते हैं 10 मिनट बाद, और उसमें आप सभी लोग का स्वागत है। प्रणाम।